السلام علیکم۔ ہماتن گوش میں خوش آمدید۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہماتن گوش کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ تقدیر کی فسوں گری، قسمت کی چال بازی یا مقدر کا کھیل، جرم، افسر شاہی اور جاگیرداری کے پس منظر میں لکھی گئی ایک دلچسپ داستان، گرداب۔ گرداب قسط نمبر 6۔ ذرا میرے ہاتھ پر بھی تو تاجور جیسی مہندی لگا دینا مہبانو، سنتی ہے تو؟ بڑی چودھرائن کی آواز سوچوں میں غلطاں مہبانوں کو کمرے کے ماحول میں واپس کھینچ لائی۔ بڑی چودھرائن کی فرمائش سن کر تاجور اور سلوبر کی بچیاں منہ نیچے کر کے دبی دبی ہنسنے لگیں۔ ان ہنسنے والوں میں اس کی سوتن ناہید بھی شامل تھی، لیکن اس نے اپنی ہنسی کو ظاہر بالکل نہ ہونے دیا۔ حویلی کی کرتا دھرتا بڑی چودھرائن کا کھل کر مذاق اڑانے کی اس میں بالکل جرأت نہ تھی۔ ایک تو وہ بڑی ہونے کی وجہ سے سبقت رکھتی تھی، دوسرے اسے حویلی کے وارث کی ماں ہونے کا فخر بھی تو حاصل تھا۔ ہاں، اگر ناہید کے ہاں صنوبر اور کشور کے علاوہ ایک بیٹا بھی ہو جاتا، یا عصمت کا بیٹا بہزاد ذہنی طور پر معذوری کا شکار نہ ہوتا، تو صورتحال قدرے مختلف ہو سکتی تھی۔ لیکن اب تو بڑی چودھرائن کے سامنے سر جھکائے رکھنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اور سب لوگ ایسا کرنے پر مجبور تھے۔ مہبانوں کون ہاتھ میں لیے بڑی چودھرائن کے قریب جا بیٹھی اور چودھرائن کا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی گرفت میں لے کر اس پر نقش و نگار بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ لیکن یہ کام اتنا آسان نہ تھا۔ چودھرائن، جس کے بارے میں سنا تھا کہ عمر میں چودھری افتخار سے کئی برس بڑی ہے، تمام تر جد و جہد کے باوجود اس کے جسم پر عمر کے اثرات ظاہر تھے۔ وہ تاجور اور صنوبر کی طرح بھرا بھرا اور کسی ہوئی جلد والا ہاتھ نہیں رکھتی تھی۔ مہبانوں آسانی سے اس کے ہاتھ پر اپنی کاریگری کا ہنر دکھا نہیں سکتی تھی۔ جھریوں زدہ ہاتھ جس پر جا بجا نسیں ابھری ہوئی تھی، مہبانوں کے فن کو مات دے کر اسے ناکام بناتا تھا۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ نک چڑھی بڑی چودھرائن خود یہ بات ماننے اور سمجھنے پر ہرگز تیار نہیں ہوگی، اس لیے پوری تیزی اور تندہی سے کوشش میں لگی پڑی تھی۔ اس کوشش میں اسے اپنے تن بدن اور ارد گرد کا بھی ہوش نہ تھا۔ جب ہی اسے اپنی پشت پر سے سنائی دینے والی آواز پر بری طرح چونکنا پڑا۔ ادھر کیا ہو رہا ہے بھئی؟ مہبانوں نے پلٹ کر سوال کرنے والے کو غور سے دیکھا۔ وہ چودھری افتخار تھے، جو سوال تو جانے کس سے کرتے تھے، لیکن نظریں مہبانوں کے وجود پر گڑی پڑی تھی۔ اس کی نظروں نے اسے احساس دلایا کہ اس کی اوڑھنی سر اور بائیں شانے سے سرک جانے کے باعث بڑی بے پرواہی سے صرف دائیں شانے پر پڑی ہے۔ اس نے پھرتی سے اوڑھنی کو اپنے گرد لپیٹ لیا۔ وہ کم عمر اور نا تجربے کار لڑکی تھی، لیکن نسوانی جبلت اسے چودھری افتخار کی نظر کا زاویہ سمجھا سکتی تھی۔ ہم لوگ مہندی لگوا رہے ہیں ابا جی، تاجور نے کھڑے ہو کر ادب سے چودھری افتخار کے سوال کا جواب دیا تو چودھری، جو مہبانوں کے نوخیز اور پرکشش حسن کی رعنائیوں کو دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا، اوڑھنی کے پیچھے چھپ جانے کے باعث محویت سے باہر نکل آیا۔ تاجور کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا کہتی ہے بھئی؟ اچھی بات ہے بیٹا، بہت اچھی بات ہے، پر یہ تو بتاؤ کہ تمہاری ماں کو اس بڈھے ویلے یہ کڑیوں والا شوق کیوں چرایا ہے؟ چودھری افتخار نے بڑی چودھرائن کا مذاق اڑایا، جس کا کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ خود بڑی چودھرائن بھی بس برا سا منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ میں تم لوگوں کو یہ بات یاد دلانے کے لیے آیا تھا کہ سارے انتظامات پر کڑی نگاہ رکھنی پڑے گی تم لوگوں کو، کہیں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ مردانے میں تو میں خود رہوں گا، اس لیے وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ ہی وہاں کے سارے معاملات دیکھ لوں گا اور سنبھال لوں گا، پر تم لوگوں کو بہت دھیان رکھنا ہے۔ ہر بار تم لوگوں کی بے پرواہی سے زنان خانے میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جایا کرتی ہے، اور پھر یہ زنانیاں اپنے گھروں کو واپس جا کر میرا نام دھرتی ہیں۔ اس بار ایسی کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے مجھے، سنا تم لوگوں نے؟ چودھری افتخار نے گفتگو کا موضوع بدل کر سخت لہجے میں اپنے گھر کی خواتین کو حکم سنانا چاہا۔ آپ فکر ہی نہ کریں چودھری صاحب، سب کچھ آپ کے حکم کے مطابق ہوگا۔
इस वारी मैंने पहले से ही बहुत सख्ती कर रखी है नौकरानियों पर। इस वारी वो गलती करने की कोई जुर्रत नहीं कर सकेंगी। बड़ी चौधराइन का सिक्का सारी हवेली पर चलता था, लेकिन चौधरी इफ्तिखार के सामने वो हमेशा आवाज़ दबाकर बात करती थी। इस वक्त भी उसने अपनी धीमी आवाज़ में चौधरी को यकीन दिलवाने की कोशिश की थी कि सब कुछ ठीक ठाक होगा। उसकी इस यकीन दहानी पर चौधरी इफ्तिखार ने जवाब तो कोई न दिया, लेकिन एक तंज और नखुवत भरी कहकर कमरे से बाहर निकल गया। चल हट पड़े, दूर हट, लेकर मेरे हाथों का सत्यानाश मार दिया तूने। बड़ी चौधराइन ने चौधरी इफ्तिखार की महबानों पर पड़ने वाली नज़रें भी देख ली थी और उसे एक मज़ारे की बेटी के सामने अपनी बेइज्जती का भी बहुत ज़्यादा एहसास था। इसलिए चौधरी के बाहर निकलते ही महबानों को ज़ोर से धक्का देकर खुद से दूर हटाते हुए उसने अपने अंदर का गुस्सा भी निकाल डाला। धक्के के ज़ोर से एक तरफ गिर जाने वाली महबानों चौधराइन के गुस्से का सबब और अपना कसूर ही सोचती रह गई। साहब मेरी मदद करो, साहब मेरी मदद करो। शहरयार लंच टाइम के बाद अपने ऑफिस से बाहर निकला ही था कि एक बूढ़ा मफलूकुल हाल शख्स उसके रास्ते में आकर खड़ा हुआ। शहरयार ने रुककर अचानक रास्ते में आ खड़े होने वाले उस बूढ़े शख्स का जायज़ा लिया। बूढ़े ने 4 खानों वाली तहबंद पर एक फटा हुआ बोसीदा सा कुर्ता पहन रखा था। ये बोसीदा कुर्ता सर्दी की शिद्दत का मुकाबला करने के लिए कतई नाकाफ़ी था और शहरयार बूढ़े के जिस्म में मौजूद लर्जिश को साफ तरीके से देख सकता था, लेकिन ये लर्जिश और कपकपाहट सिर्फ सर्दी की वजह से बिल्कुल न थी। इसके पीछे बूढ़े का मुसलसल गिरिया भी मौजूद था। वो आंसुओं के साथ बाकायदा फूट फूट कर रो रहा था। आंसू उसके झुर्रियों ज़दा चेहरे से बहते हुए उसके बोसीदा कुर्ते में जज्ब होते चले जा रहे थे। साहब मेरी मदद करो। शहरयार की तरफ से फौरी कोई रद्द अमल जाहिर ना होने पर बूढ़े ने उसे दोबारा मुखातिब किया। अंदर चलो बाबा, फिर बात करते हैं। शहरयार बाहर जाने का इरादा तर्क करके दोबारा अपने ऑफिस की तरफ पलट गया। बूढ़ा आदमी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। एक गिलास पानी लाओ। बूढ़े को अपने ऑफिस में बिठाकर शहरयार ने चपरासी को फौरन हुक्म दिया। पानी पियो बाबा, फिर आराम से बताओ कि क्या मसला है। चपरासी पानी लेकर आया तो शहरयार ने बूढ़े को मुखातिब किया। बूढ़े ने चुपचाप शहरयार की बात मान ली और एक सांस में सारा पानी चढ़ा गया। पानी पीकर उसके हवास कुछ बहाल हुए और वो बाएं हाथ की मदद से अपने रुखसार पर ठहरे हुए आंसुओं के कतरों को साफ करने लगा। चेहरे पर आंसुओं के कतरे साफ करते हुए हाथों का खुरदरापन, उभरी हुई रगें और स्याह पड़ती हुई खाल गवाही देती थी कि बूढ़े की सारी जिंदगी अनथक मेहनत और मुशक्क़त में गुजरी है। जिंदगी भर की ये मेहनत और मुशक्क़त गोया उसके हाथों पर अनमिट नक्श बनकर सब्त हो चुकी थी। हाँ बाबा, अब बोलो, क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? बूढ़े को संभलते देखकर शहरयार ने नरमी से उसका मसला पूछना चाहा। मैं लुट गया साहब, मैं बर्बाद हो गया। मेरी ज़िंदगी भर की कमाई और इज्जत लूट कर ले गए जालिम लोग। बूढ़े की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। किसने लूट लिया है तुम्हें? कौन हैं ये जालिम लोग और ये जुल्म करने वाले कौन हैं? ज़रा आराम से और तफसील से सारी बात बताओ। शहरयार ये तो महसूस कर सकता था कि वो शख्स किसी निहायत अंदोनाक हादसे से गुजरा है, लेकिन इन तमाम जुमलों से पूरी तफसील अखज़ करना कुछ मुश्किल काम था। इसलिए उसने बूढ़े को कुरेदना चाहा। क्या बताऊं साहब कि वो कौन है? उनका कोई नाम और पता तो है नहीं। वो तो बस किसी आंधी की तरह आते हैं और हम गरीबों को बर्बाद करके चले जाते हैं। मैंने कितनी मुश्किल से अपनी धी के जहेज़ के लिए जेवर और कपड़ा जोड़ा था। बारात को खाना खिलाने के लिए कुछ रकम जमा की थी। जालिम सब कुछ लूट कर ले गए, साथ मेरी धी को भी ले गए। मैंने कितनी मिन्नत समाजत की उनकी, सर पैरों पर रख दिया उनके, पर वो मेरे सफ़ेद चोले का भी लिहाज किए बगैर मुझे ठोकर मारकर दूर फेंक कर चले गए। बूढ़े की बात सुनकर शहरयार ने पहली बार नोट किया कि उसके माथे पर बाएं जानिब अच्छा खासा बड़ा गोमड़ा भी उभरा हुआ था। ये गोमड़ा यकीनन बूढ़े को लगाई जाने वाली ठोकर का ही शाखसाना था। तुमने थाने में रिपोर्ट करवाई इस वाक़े की? बूढ़े का ख़ानदान वाकई एक क़यामत से गुजरा था। शहरयार ने अपने दिल में उसके लिए हकीकी दुख महसूस करते हुए हमदर्दी से सवाल किया। पहले उधर ही गया था जनाब। थानेदार बोलता है पहले 200 रुपया दे दो, फिर पर्चा कटेगा। मैं उसको 200 रुपया कहाँ से देता? डाकू पाई पाई लूट कर ले गए थे मेरे घर से।
میرے پاس تو یہاں آنے کے لیے تانگے کا کرایہ بھی نہ تھا۔ اپنے گاؤں سے پیدل یہاں تک چلا آ رہا ہوں۔ صبح فجر کے بعد کا چلا تھا۔ پہلے تھانے گیا، وہاں کسی نے میری نہ سنی، پھر کسی نے کہا یہاں پر ایک نیا AC آیا ہے اور بہت اچھا آدمی ہے، اس سے جا کر شکایت کرو، وہ تمہاری عرض ضرور سنے گا۔ اس لیے میں یہاں دوڑا چلا آیا، شاید آپ کچھ سن لے۔ بوڑھے کی بتائی گئی تفصیلات سن کر شہریار کے چہرے پر غصے کی سرخی دوڑنے لگی۔ کیسا ستم تھا کہ ایک شخص پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ اپنی کل پونجی کے ساتھ اور اپنی عزت سے بھی محروم ہوا، اور کوئی اس کے ساتھ ہوئے اس ظلم کی رپورٹ لکھنے والا بھی نہ تھا، کیونکہ وہ رپورٹ لکھوانے کے لیے 200 روپے تھانے میں جمع نہیں کروا سکتا تھا، یعنی ان کو رشوت میں کچھ نہیں دے سکتا تھا۔ تھانے دار کون ہوتا ہے رپورٹ لکھنے کے لیے 200 روپے مانگنے والا؟ تم پر ظلم ہوا ہے، تمہارا حق ہے کہ تم اس ظلم کی رپورٹ لکھواؤ۔ تھانے دار بولتا ہے تو نے اپنے پاس بڑا مال دبا رکھا تھا نا، تیرے پاس مال تھا، جبھی تو ڈاکو تیرے گھر آئے، اب اس مال میں سے تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی دے ڈال۔ بوڑھے نے تھانے دار کا موقف سنایا۔ اس بار شہریار نے بوڑھے سے کچھ بھی نہ کہا اور انٹرکام پر عبد المنان کو اندر آنے کا حکم دے دیا۔ عبد المنان، گاڑی نکلواؤ، ہمیں ابھی اس شخص کے ساتھ اس کے گاؤں جانا ہے۔ عبد المنان کے اندر آتے ہی شہریار نے اسے فوراً ہدایات جاری کی۔ اوکے سر، میں ابھی 5 منٹ میں تمام بندوبست کرتا ہوں، عبد المنان نے جواب دیا، اور واقعی ٹھیک 5 منٹ بعد وہ لوگ گاڑی میں سوار بوڑھے کے گاؤں کی طرف کو روانہ تھے۔ بوڑھا گاڑی کی اگلی نشست پر ڈرائیور کے برابر بیٹھا تھا، جبکہ عبد المنان شہریار کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھا تھا۔ راستے میں شہریار نے عبد المنان کو بوڑھے کے ساتھ بیتے حادثے کے بارے میں مختصر بتایا اور پھر اس سے پوچھا، کیا اس سے پہلے بھی اس قسم کے کیسز سامنے آئے تھے؟ یقین سے تو نہیں بتا سکتا سر، لیکن بعض اوقات اڑتی اڑتی یہ خبر مل جایا کرتی تھی کہ ڈاکوؤں کے گروہ نے کسی گاؤں پر حملہ کیا ہے اور ان کا مال و اسباب لوٹنے کے ساتھ ہی کوئی لڑکی بھی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ عبد المنان نے محتاط الفاظ میں شہریار کے سوال کا جواب دیا۔ اس جواب کو سن کر شہریار نے خاموشی اختیار کر لی۔ باقی کا راستہ اس نے خاموشی میں گزارا۔ راستہ کچھ طویل تھا، لیکن اس طوالت کو مضبوط ٹائروں اور طاقتور انجن والی گاڑی نے بہت تیزی سے طے کر لیا۔ اس کے باوجود شہریار بوڑھے شخص کی اس تکلیف کو محسوس کیے بنا نہ رہ سکا جو اس نے کئی گھنٹوں کی مسافت پیدل طے کرنے میں اٹھائی ہوگی۔ بالآخر راستوں پر دھول اڑاتی گاڑی نے انہیں بوڑھے کے گاؤں تک پہنچا ہی دیا۔ شہریار چاہتا تو اس دور دراز گاؤں تک کا سفر کرنے کے بجائے براہ راست متعلقہ تھانے پہنچ کر وہاں کے تھانے دار سے باز پرس بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے مناسب یہی سمجھا کہ پہلے خود معاملے کی تحقیقات کر لے، پھر جا کر تھانے دار کی بھی کلاس لے لے گا۔ چنانچہ اب اس کا ڈرائیور بوڑھے کی رہنمائی میں گاڑی کو اس کے گھر کی طرف لے جانے والے راستے پر دوڑا رہا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھنے والا یہ ڈرائیور بڑا مستعد اور فرشناس ڈرائیور تھا۔ جلد ہی اس نے کچے پکے اور اونچے نیچے راستوں پر مہارت سے گاڑی دوڑاتے ہوئے ان لوگوں کو بوڑھے کے گھر تک پہنچا ہی دیا۔ گھر کیا تھا، بس 2-3 کمروں پر مشتمل ایک کچا سا کوٹھا ہی تھا، جس کے سامنے اس وقت بھی 4-5 افراد کھڑے نظر آتے تھے۔ کہاں چلا گیا تھا دین محمد تو؟ تیری بیوی کو غشی کے دورے پڑتے ہیں۔ اور چھوٹا لڑکا غصے میں آپے سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ اس کے غصے سے ڈر کر ہم نے ابھی تک کمرے کی کنڈی بھی نہیں کھولی۔ جوں ہی بوڑھے نے ان لوگوں کے ساتھ گاڑی سے باہر قدم رکھا، تقریباً اسی کی عمر اور حلیے والا ایک شخص لپک کر اس کے قریب آیا اور اسے تفصیلات بتانے لگا۔ انصاف کی تلاش میں گیا تھا نا، یہ نئے AC صاحب ہیں، یہ میری عرض سن کر خود یہاں تک مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر لائے ہیں، اب یہی کچھ کریں گے میرے لیے۔ بوڑھے نے، جسے دین محمد کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا، خود سے مخاطب ہونے والے شخص کو پوری تفصیل سے سنایا۔ پھر وہ شہریار اور عبد المنان کو اپنے ساتھ گھر کے اندر لے گیا۔ ڈرائیور باہر گاڑی میں ہی ان لوگوں کا منتظر بیٹھا رہا۔ بوڑھے کے گھر کے در و دیوار سے ویرانی ٹپکتی تھی۔ اس ویرانی میں دین محمد کی بیوی کے رونے اور واویلا کرنے سے ذرا دیر کو ارتعاش پیدا ہوتا اور پھر وہ دوبارہ غشی میں چلی جاتی۔ جب وہ غشی میں چلی جاتی تو ماحول پر خاموشی چھا جایا کرتی تھی۔ گاؤں کی 2-4 عورتیں دین محمد کی بیوی کو سنبھالنے کے لیے وہاں موجود تھیں، لیکن ان پر بھی موت کی سی خاموشی طاری تھی۔
वो घर जहाँ से एक जवान लड़की को अगवा कर लिया गया हो, इसी तरह मौत का मंजर पेश कर सकता था। शहरयार ने अपने पीछे ही घर के अंदर आ जाने वाले अफराद से वाक़े के बारे में तफसीलात पूछना शुरू कर दी। लोगों से उसे जो कुछ मालूम हुआ उसका खुलासा ये था कि दीन मोहम्मद की अकलौती बेटी की शादी दूसरे गांव के एक लड़के से 2 दिन बाद होने वाली थी। शादी की तैयारियां मुकम्मल थीं और लड़की को मायूं बिठाया जा चुका था। अकलौती बेटी होने की वजह से दीन मोहम्मद ने अपनी इस्तात से बढ़कर उसके लिए कुछ ज़्यादा ही जहेज़ का इंतज़ाम कर लिया था। लड़की के जहेज़ के लिए जेवर, कपड़े, बर्तन और दूसरी ज़रूरी अशिया बिल्कुल तैयार थीं। दीन मोहम्मद ने दूसरे गांव से आने वाली बारात के लिए लस्सी, पानी और खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा रकम जोड़ रखी थी। इस काम में दीन मोहम्मद के दोनों नौउमर बेटों ने भी खूब हाथ बटाया था। वो भी बहन के जहेज़ की तैयारी के लिए दिन रात मेहनत मजदूरी करते रहे थे। गर्ज शादी का इंतज़ाम बिल्कुल मुकम्मल था और घर में खुशी के शादियाने बजते थे। लड़की की सहेलियां और गांव की दूसरी औरतें हर शाम दीन मोहम्मद के घर पर जमा होकर शादी ब्याह के गीत गाती और हंसी मजाक करती। उन औरतों की भी दीन मोहम्मद के घर में हस्बे इस्तात खूब तवाज़ो की जाती। कल भी उसके घर पर औरतों और लड़कियों की ये महफिल जमी थी और हस्बे मामूल वो लोग रात का अंधेरा फैलने के बाद अपने घरों को वापस लौट गई। फिर जाने क्या हुआ कि आधी रात को दीन मोहम्मद के घर से उसकी और उसकी बीवी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। गांव वाले दौड़कर वहां पहुंचे तो खुशी के घर का मंजर ही बदला नजर आता था। दीन मोहम्मद अपना सर पीट रहा था और उसकी बीवी पछाड़े खा रही थी। एक कमरे के बंद दरवाजे के पीछे उसके बेटों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। लोगों के पूछने पर दीन मोहम्मद बमुश्किल गांव वालों को ये बता पाया कि 5 डाकू असलहा लेकर उसके घर में घुस आए और मालो असबाब लूटने के साथ उसकी बेटी को भी उठाकर ले गए। दोनों लड़के इस तमाम सूरत हाल पर बहुत ज़्यादा गर्म नजर आते थे और उन्होंने मज़ाहमत की कोशिश भी की थी। जवाब में डाकुओं ने अपनी राइफलों के बट से उनकी तवाज़ो की। दीन मोहम्मद डर गया कि बेटों का ये जोश उनसे उनकी ज़िंदगी ही ना छीन ले। उसने खुद अपने हाथों से उन्हें एक कमरे में धकेल कर बाहर से कुंडी लगा दी। ये कुंडी अभी तक लगी हुई थी और दीन मोहम्मद अकेला ही ख्वार होता फिरता था। वो सुबह सूरज निकलते ही घर से निकल खड़ा हुआ ताकि अपने साथ होने वाले हादसे की रिपोर्ट लिखवा सके, लेकिन थाने में उसकी कोई सुनवाई ना हो सकी। इसके बाद दीन मोहम्मद किसी के मशवरे पर शहरयार के दफ्तर जा पहुंचा। सारी तफसीलात सुनकर शहरयार को शदीद अफसोस हुआ। उसके सामने ही कमरे की कुंडी खोलकर दीन मोहम्मद के बेटों को बाहर निकाला गया। उनमें से एक लड़का 18 साल का और दूसरा तकरीबन 14-15 साल का लड़का था। लड़कों के चेहरों पर थकन, दुख और गुस्सा साफ दिखाई देता था। सारे बेईमान और लालची लोग बैठे हैं हुकूमत की सीटों पर। डाकुओं के लूट के माल में अफसरों का भी हिस्सा शामिल होता है, इसीलिए तो कोई कुछ कहता नहीं और कोई कुछ करता नहीं। छोटे लड़के ने शहरयार को देखते ही चीखना चिल्लाना और इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। शहरयार ने तहम्मुल से उसका ये पूरा इल्ज़ाम सुना, मगर लड़का बहुत ज़्यादा गज़बनाक हो रहा था और शायद डाकुओं के हाथों उठाई जाने वाली बेइज्जती का बदला शहरयार की अच्छी तरह से बेइज्जती करके लेना चाहता था। लड़के के तेवर देखकर गांव के 2-3 अफराद ने उसे संभाला और फिर वापस उसी कमरे में बंद कर दिया। शहरयार ने इस तमाम सूरत हाल पर कोई भी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किए बगैर दीन मोहम्मद को एक बार फिर अपनी गाड़ी में बिठाया और ड्राइवर को कस्बा नूरकोट में वाक़ थाने चलने का हुक्म भी दे दिया। वो लोग थाने पहुँचे तो थाने का अमला बेहद मुस्तैद और फ़ाल नज़र आया। यकीनन किसी ज़रिए से उन्हें शहरयार के दीन मोहम्मद के साथ उसके गांव जाने की खबर मिल गई थी और उनके लिए शहरयार की थाने में आमद 100% यकीनी थी। इसलिए उन्होंने उसके थाने पहुंचने से पहले ही सारा सेटअप तैयार कर लिया था। थानेदार ने उनके थाने पहुंचने पर बहुत अदब और जोश से शहरयार का इस्तकबाल किया। उसके इस जोशो खरोश को खातिर में न लाते हुए शहरयार ने अपने अंदाज को सर्द ही रखा और दीन मोहम्मद के केस के मुतालिक बासपुर्स शुरू कर दी। तौबा सर जी तौबा, ये कैसे हो सकता है कि मैं रिपोर्ट दर्ज करने के लिए किसी से 200 रुपये तलब करूं? ना ना ना, मैं तो रात थाने में था ही नहीं जी। मेरे पेट में सख्त गड़बड़ थी, इसलिए अपने क्वार्टर में ही आराम कर रहा था। आप तो जानते होंगे जी कि ये पेट की गड़बड़ बंदे को कैसा निढाल कर देती है, पर मैं आदमी बड़ा फर्शनास किस्म का हूँ।
बीवी ने बहुत रोका कि आज ड्यूटी पर ना जाऊं, पर रुका नहीं और तबीयत ज़रा सी संभलते ही थाने पहुंच गया। बस ये है कि मुझे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। अब आप कह रहे हैं कि ये बंदा मुझ पर इल्ज़ाम लगाता है कि मैंने रिपोर्ट लिखने के लिए इससे 200 रुपये मांगे थे। तो जनाब, जब मैं सुबह से बल्कि रात से थाने में था ही नहीं तो रुपए कैसे मांगता? इस बाबा जी को यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। शहरियार की बात सुनकर थानेदार ने फौरन अपने कल्ले पीटते हुए पूरी बात तफसील से शहरियार के गोश गुजार कर दी। मुमकिन है तुम्हारे किसी मातहत ने यह हरकत की हो। फिलहाल मैं इस मामले की तहकीक में पढ़कर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। तुम खुद ही तय कर लो कि ये हरकत किसने की है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मुझे आइंदा ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, वरना इस थाने का सारा अमला मुअत्तल भी हो सकता है। शहरियार समझता था कि थानेदार निरी ड्रामेबाजी करता है, लेकिन फिलहाल कोई सख्त एक्शन लेने के बजाय ज़बानी तंबीह करना ही काफ़ी समझ रहा था। मैं ख्याल रखूँगा सर, आइंदा हमेशा ख्याल रखूँगा। बस आप ये बताएं कि इस बाबे का मसला क्या है। हम अपनी जान लगाकर इसका मसला हल करने की कोशिश करेंगे। आखिर हम यहाँ बैठे ही आवाम की खिदमत करने के लिए हैं। हमारा काम ही क्या है? थानेदार ज़रूरत से ज़्यादा ही फर्शनासी का मुजाहरा कर रहा था। उसकी इस मसनूई फर्शनासी को खातिर में ना लाते हुए शहरियार ने दीन मोहम्मद को इशारा किया। उसके इशारे पर दीन मोहम्मद अपने साथ बीते हादसे की तफसील थानेदार को सुनाने लगा। थानेदार ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए संजीदगी से उसकी पूरी बात सुनी और अपने हाथ से रिपोर्ट लिखने लगा। बड़ा अफसोस हुआ सर जी, बहुत अफसोस हुआ इस बाबे के साथ होने वाले जुल्म का सुनकर। वाकई बड़ा गहरा सदमा पहुंचा है इस बेचारे को और इस बेचारे के घर वालों को। जवान बेटी का अगवा होना इसकी मौत से भी ज़्यादा बड़ी बात है। शायद इसीलिए इस बाबा जी की मत मारी गई थी और ये अपने हवास खोकर उल्टी सीधी शिकायत लगाने आपके पास पहुंचा। मुझे तो पूरा यकीन हो चला है कि ये बाबा मेरे थाने आया ही नहीं और बदहवासी में सीधा आपके पास जा पहुंचा। मैं भी हैरान हो रहा था कि मेरे अमले में कौन ऐसा रिश्वतखोर आदमी निकल आया जो मेरी इतनी सख्ती के बावजूद इस बाबा जी से रिश्वत मांगता हो। पर अब मैं समझ गया कि गड़बड़ मेरे अमले की नहीं, बाबा जी के दिमाग की है। थानेदार रिपोर्ट लिखकर फारिग हुआ तो एक बार फिर अपनी ज़बान के जौहर दिखाने शुरू कर दिए। शहरियार देख सकता था कि दीन मोहम्मद में थानेदार की मुखालफत करने की भी जुर्रत नज़र नहीं आती थी। शायद ये थानेदार की उन नज़रों का असर था जो दीन मोहम्मद की तरफ उठती थीं, तो उनमें कहर ही कहर भरा नज़र आता था। शायद आप ठीक कहते होंगे जनाब। बहरहाल असल मसला इस शख्स की दिमागी हालत का नहीं है, बल्कि इसके साथ होने वाले जुल्म की तहकीक करने का है। मुझे उम्मीद है कि आप इस रिपोर्ट को सिर्फ थाने के रिकॉर्ड के तौर पर सजाकर नहीं रखेंगे, बल्कि इस पर कुछ एक्शन भी लिया जाएगा। आप फौरी तौर पर एक्शन लें और मुखबिया के बारे में मालूमात हासिल करके उसे बाजियाब करवाने के सिलसिले में पेशरफ्त शुरू करें। 4 दिन के अंदर अंदर इस केस की रिपोर्ट मेरे सामने पेश हो जानी चाहिए। थानेदार के बयान को कोई अहमियत दिए बगैर शहरियार ने उसे हुक्म दिया और अपनी जगह से खड़ा होने लगा। प्लीज़ सर, प्लीज़, ये चाय तो पीते चले जाएं। जल्दी में हम फ़िलहाल यही इंतज़ाम कर सके। किसी रोज़ आप इत्तला देकर आएंगे ना, तो हम आपकी बहुत अच्छे तरीके से तवाज़ो करेंगे। शहरियार को खड़े होता देखकर थानेदार ने मेज़ पर सजे चाय के बर्तनों और दीगर लवाजमात की तरफ इशारा करते हुए खुशामदाना लहजे में दरख्वास्त की। चाय और उसके साथ मौजूद ये लवाजमात अभी अभी 2 सिपाही मिलकर मेज़ पर सजाकर चले गए थे। नो थैंक्स, मैं बेवक्त खाने पीने से बिल्कुल गुरेज करता हूँ। आप भी एहतियात किया करें। पुलिस की नौकरी करने वाले शख्स को चाको चौबंद और स्मार्ट होना चाहिए, वरना पुलिस वाला अपनी तोंद पर पेंट ही संभालता रह जाएगा और मुजरिम भाग निकलेंगे। शहरियार ने थानेदार की दावत कबूल करने से कतई इनकार करते हुए उसकी फैली हुई तोंद की तरफ इशारा करके तंज भी कर दिया। थानेदार खुद पर की जाने वाली इस चोट पर झींप गया और फिर शायद इसीलिए दोबारा शहरियार से चाय पीने पर इस्तार भी न कर सका। थाने से निकलकर शहरियार ने ड्राइवर को हिदायत की कि पहले दीन मोहम्मद को उसके गांव के करीब उतार दिया जाए और फिर वापस चला जाए। ड्राइवर ने उस हिदायत पर अमल किया। दीन मोहम्मद, मैंने तुम्हारे गांव में एक छोटा सा मदरसा देखा था, वो मदरसा किसने बनाया है? गाड़ी रवाना हुई तो शहरियार को दीन मोहम्मद के गांव में देखी गई उस इमारत का ख्याल आया जो तकरीबन 100 गज के रकबे पर तामीर की गई थी।
इमारत छोटी थी लेकिन पसमानदा से गांव के कच्चे घरों के मुकाबले में उसकी तामीर काफ़ी अच्छी नज़र आती थी। शहरयार ने उस इमारत के गेट पर किसी मदरसे का बोर्ड आवेज़ा देखा था, लेकिन उस वक्त दीन मोहम्मद से उसके बारे में पूछना बेकार था, इसलिए तजस्सुस के बावजूद वो चुप ही रहा था। उसे अब दोबारा इस मदरसे का ख्याल आया तो दीन मोहम्मद से उसके बारे में सवाल जवाब शुरू कर दिए। वो मदरसा शाहनवाज साहब ने बनवाया है साहब। शाहनवाज साहब बहुत नेक आदमी है। उसके आने से हमारे गांव की किस्मत जाग गई। पहले बच्चे इधर उधर आवारा फिरने में अपना वक्त बर्बाद करते थे, अब मदरसे जाकर दीन की बातें सीखते हैं। शाहनवाज साहब उन्हें अपने पल्ले से एक वक्त की रोटी भी खिलाते हैं। बड़े ही सखी दिल आदमी है शाहनवाज साहब। शहरयार के सवाल करते ही दीन मोहम्मद ने किसी शाहनवाज साहब की तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर दिए। ये शाहनवाज साहब असल में हैं कौन और ये आए कहाँ से हैं? दीन मोहम्मद के जवाब ने शहरयार के इश्तियाक को मज़ीद बढ़ाया। शाहनवाज साहब के बारे में वो मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहता था। ये सब तो नहीं मालूम साहब, पर इतना मालूम है कि शाहनवाज साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। दीन मोहम्मद के लहजे में अकीदत ही अकीदत नज़र आती थी उनके लिए। शहरयार ने अंदाज़ा लगाया कि शाहनवाज साहब भी कोई मास्टर आफ्ताब की कैटेगरी का आदमी है, जो आराम और आसाइश की ज़िंदगी को छोड़कर गांव के इन पिसे हुए लोगों की भलाई के ख्याल से उनके दरमियान आ बसा। दूसरों के लिए अपनी ज़ात का आराम तर्ज देने वाले ऐसे लोग शहरयार को बहुत अच्छे लगा करते थे। शहरयार की ख्वाहिश थी कि वो शाहनवाज साहब से भी मुलाकात करे और उसके मदरसे को भी जाकर देखे, लेकिन आज वो पहले ही तयशुदा शेड्यूल से बहुत ज़्यादा हट कर मसरूफ़ हो चुका था और अब उसके पास कतई वक्त मौजूद न था कि शाहनवाज साहब से मुलाकात के लिए जा सके। आज उसे चौधरी इफ्तिखार के दादा के उर्स में शिरकत के लिए पीराबाद भी पहुंचना था। वो अगर शाहनवाज से मुलाकात की कोशिश करता तो चौधरी इफ्तिखार के गांव पहुंचने में बहुत ताख़ीर हो जाती। नाचार अपनी इस ख्वाहिश को दबाकर चुपचाप बैठा रहा और ड्राइवर ने दीन मोहम्मद को उसके गांव की हुदूद के करीब उतारने के बाद गाड़ी मोड़ ली।